Yes friends, let us understand the amendments for May 17, November 17. They are the amendments which are given by Finance Act 2016. When I say Finance Act 2016, all the changes are applicable for May 17 attempt. Now when I say total changes, they are divided into two categories. Few changes which are very relevant for exams, and then there are few changes which are not so relevant for the purpose of exams. Like if at all I say changes which are very much relevant, we will be first covering those changes, and then we will be taking those changes which are not so relevant for the purpose of exams. One of the first fundamental change that we have is under SANVIT Credit Rules 2004. That is in relation to Rule 7, which talks about input service distributor. Friends, we need to understand what do we mean by input service distributor. Before we do the change, before we go through the change, first we need to identify what is input service distributor. Friends, input service की credit को distribute करने के लिए जो rule बनाया गया है, that is what we called as input service distributor. Now, why do we have a rule for distribution of input service credit? Let us understand that, friends. When I say we are a manufacturer of final product and having our factory in different locations, or we may even take an example that we are a provider of service and are having service premises in different locations. Over and above that those different factories or those different premises, we are having our own managing office, which is administrative office, which is doing all administrative and management work. You may take an example that let's say we are running a company which is providing a rent-a-cab service, and that service is getting provided all over India. Let's say we have different locations where we provide service. Let's say we are providing service in Delhi, we are providing service in Mumbai, we are providing services in Ahmedabad, we are providing services in Chennai, we are providing services in Kolkata, Bangalore and all other locations. Apart from all these locations from where we provide service, we are having our own managing office somewhere located in Ahmedabad. Now that office manages all the work at the different locations. You may take an example, let's say the services which are provided in Ahmedabad, bills are getting served from Ahmedabad location. The service, rent-a-cab service which is provided in Mumbai, the bill is going to be served from Mumbai office. Let's say Delhi, bill is going to be served by Delhi office. So what I'm trying to convey is our each premises is issuing a bill, and that means we are not following a centralized billing system, we are following a decentralized billing system, meaning thereby we are going for multiple registration. So there would be a separate registration of Ahmedabad, there would be a separate registration of Mumbai, there would be a separate registration of Delhi, separate registration of Kolkata, Chennai, Bangalore and so on and on and on. Apart from that, we have one managing office at Ahmedabad. Let's say we are giving an advertisement in TV in relation to the rent-a-cab service. Now friends, as we understand under service tax, TV advertisement is a taxable event. So if it is a taxable event, so it is definitely service tax which is going to be charged by the service provider. The advertising company is going to charge the service tax in relation to that. Now friends, if you are aware, under input service definition, we always get a credit of an advertisement service. So the company which is providing us an advertisement service, whatever service tax that they will charge, we are going to get the credit. Now friends, let's very importantly understand the point for input service distributor. What happens is, the TV advertisement is given pan-India, is not done by any of the location. It's not Ahmedabad location who is managing the advertisement. It's not Mumbai location which is managing the advertisement. It's not Delhi location which is managing the advertisement, not Bangalore, not Kolkata. Rather, entire advertisement work is managed by our managing office, administrative office, which is somewhere located in Ahmedabad. So this managing office, administrative office is just doing this kind of work, while all the different locations from where we are providing service are managing the actual service activity. Now because the advertisement work is managed by our administrative office, so the service provider is going to serve a bill only to administrative office. Though that advertisement relates to each location and each location is going to get a benefit out of that,
but still the bill will be served by a service provider only to administrative office, which is looking after the work of advertisement in all the locations. Now in that situation, friends, the relevant point is the credit can be taken by that location which is getting a bill, which is where the bill is getting served, and because the bill is getting served at administrative office, so credit would also go to administrative office. Now if the credit would go to administrative office, can we transfer that credit? Can we distribute that credit from administrative office to the different locations? Why, friends? The ultimate reason, the main reason is the service which we are talking about is not going to benefit administrative office. The service on which service tax is charged is ultimately going to benefit whom? Each location. Because हर लोकेशन में जब लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसके हिसाब से वो ये सर्विस लेंगे, तो अल्टीमेटली ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस का बेनिफिट लोकेशन को मिलने वाला है, जबकि बिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे सर्व हुआ है. तो फ्रेंड्स उसी रीजन से ये रूल बनाया गया है जहां पे बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अपने प्रीमाइसेस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में रजिस्टर करवा ले, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पूरी की पूरी क्रेडिट बाकी के लोकेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. अब वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उसी के रिलेटेड ये पूरा रूल 7 है, और जिसमें अभी अमेंडमेंट है. जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सर्विस प्रोवाइडर का, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ सेम लाइन पे मैन्युफैक्चरर का. लेट्स टेक इट दिस वे, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड. This A Limited is manufacturing goods, is having 4 different factories. One factory is somewhere located in Chennai, another factory is somewhere located in Mumbai, another factory is somewhere located in Delhi, another factory is somewhere located in Kolkata. Apart from these 4 manufacturing units, the company is having its own office somewhere located in Ahmedabad. So Ahmedabad office is maybe an HO, maybe a registered office, maybe a corporate office, but is managing all the work. Now let's put it this way, this office is arranging a training program for all the goods that are manufactured at Chennai, at Mumbai, at Delhi, at Kolkata. Now when I say goods are manufactured at Chennai, Mumbai, Delhi and Kolkata, in relation to all of them, there are different workers who are working over here. Let's say इन सारे workers का कोई एक single location पे हम लोग training conduct करवा रहे हैं. मान लो कि कोई भी एक auditorium जो अहमदाबाद में ही located है वहाँ पे training arrange हो गया. अब ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हर लोकेशन से लोग यहाँ पे आएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उस ट्रेनिंग का बेनिफिट अल्टीमेटली हर लोकेशन में प्रोडक्शन एक्टिविटी के रिलेटेड मिलने वाला है. बट बिकॉज एंटायर ट्रेनिंग इज अरेंज्ड, इज मैनेज बाय अहमदाबाद ऑफिस, तो पूरा क्रेडिट आपको अहमदाबाद ऑफिस पे ही मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेनर होगा वो अपना बिल अहमदाबाद ऑफिस पे ही सर्व करेगा, और बिकॉज वो अपना बिल अहमदाबाद ऑफिस पे सर्व करेगा तो उसका पूरा क्रेडिट अहमदाबाद ऑफिस पे मिलेगा. नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज whether training service has benefited Ahmedabad office or has benefited respective factory. If it has benefited Ahmedabad office, then yes, we understand that the credit is also there at Ahmedabad office. If it has benefited respective factories, then the credit should actually go to the respective factories. And hence in excise we understand we always follow decentralized registration system. So Chennai is having a separate registration number, Mumbai factory is having a separate registration number, Delhi factory is having a separate registration number, Kolkata factory is having a separate registration number. So point is, अगर आप यहाँ पे सर्विस रिसीव करो, यहाँ पे इनवॉइस रिसीव करो, आपको यही क्रेडिट मिलेगा. If you receive service at Mumbai, you receive invoice at Mumbai, you get credit over here. If you receive service at Delhi, invoice at Delhi, you get credit at Delhi. Same is Kolkata. But here, service is received in relation to all this, while invoice is getting served at Ahmedabad. So for that, friends, first what we need to understand is this Ahmedabad unit has to register at an ISD premises, as an ISD premises. And that ISD premises can transfer credit to the respective factories. Now, when I say transfer credit to the respective factory, then what are the criteria in relation to that? Friends, that is where we need to understand a lot of things for this. Like, first question comes in as,
जिस सर्विस की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सर्विस कोई एक ही यूनिट के रेलेवेंट है? फ्रेंड्स, माय वर्ड फॉर यूनिट इज फैक्ट्री. व्हेन आई से यूनिट मींस फैक्ट्री. अगर आप मैन्युफैक्चरर हो ना तो यूनिट का मतलब होगा फैक्ट्री. अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो यूनिट का मतलब होगा प्रीमाइसेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. सो व्हेन आई से यूनिट, तो जिस सर्विस की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सर्विस एक यूनिट के रिलेटेड है? अगर वो सर्विस एक यूनिट के, कोई भी एक, मान लो कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट हम लोग कोई लोकल टीवी चैनल में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो टीवी चैनल खाली चेन्नई में ही चल रहा है, जो बाकी के कोई लोकेशन में नहीं चल रहा है. या मान लो कि हम कोई मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसका सर्कुलेशन खाली मुंबई में ही है, तो अगर फ्रेंड्स हम उस एडवर्टाइजमेंट सर्विस की बात करें, भले वो एडवर्टाइजमेंट ऑफिस अहमदाबाद ऑफिस मैनेज करे, भले वो एडवर्टाइजमेंट वर्क अहमदाबाद ऑफिस मैनेज करे, बट प्लीज कीप दैट इन माइंड, भले बिल यहाँ पे आएगा, बट प्लीज कीप दैट इन माइंड कि ये सर्विस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मुंबई में सर्कुलेट होते हुए मैगजीन का है, तो ये अहमदाबाद ऑफिस पे क्रेडिट लेने के बाद ये पूरी क्रेडिट अहमदाबाद से डिस्ट्रीब्यूट खाली मुंबई में ही होगा. क्यों फ्रेंड्स? तो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्विस which is giving benefit only to a single unit. So we are talking about a service which is attributable to only one unit. If we talk about a service which is attributable to only one unit, then the entire credit will go to one unit only. Friends, खास समझना है यहाँ पे. अब मैं बात कर रहा हूँ अमेंडमेंट के रिलेटेड. यहाँ पे टोटल 2 अमेंडमेंट है. पहला जो अमेंडमेंट है, जो एक माइनर चेंज है बट जो बहुत जरूरी था, जो प्रोबेबली एक लूपहोल है उसको निकालने के लिए, जो फाइनेंस एक्ट 16 के पहले प्रोविजन था, उसमें ऐसा बोला था कि या तो हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं वो कोई एक यूनिट के रिलेटेड है, या तो हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा यूनिट के रिलेटेड है. अगर हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं वो कोई एक यूनिट के रिलेटेड है तो पूरा क्रेडिट उसी यूनिट पे जाएगा. जैसे कि मैंने बोला, मैगजीन जो खाली मुंबई में सर्कुलेट हो रहा है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट दे तो उसका बेनिफिट खाली मुंबई को ही मिलना चाहिए. बट मान लो कि कोई मैगजीन जो पान इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर हम उसमें एडवर्टाइजमेंट दें तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्विस जिसका बेनिफिट एक यूनिट को मिलने वाला है कि सबको. तो कि अगर सबको मिलेगा तो वो क्रेडिट एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा. फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गलती क्या है पता है? 2 ही ऑप्शन है. सर्विस एक यूनिट को बेनिफिट दे कि एक से ज्यादा यूनिट को बेनिफिट दे. बट क्या फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक मैगजीन है जिसका सर्कुलेशन मुंबई और चेन्नई दोनों में है? अगर सर्कुलेशन मुंबई खाली है तो बेनिफिट मुंबई को मिलेगा, मुंबई चेन्नई दोनों में है तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा, अगर सब में है तो सबको बेनिफिट मिलेगा. फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा हूं, अगर सर्विस की बात करें जो एक यूनिट के रिलेटेड है तो वहां पे जाना चाहिए. अगर एक से ज्यादा के रिलेटेड है ना तो एक्चुअली उसमें 2 ऑप्शन होने चाहिए, जो ओल्ड लॉ में नहीं है. ओल्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक से रिलेटेड है तो वहां जाएगा, एक से ज्यादा के रिलेटेड है तो सब में जाएगा. व्हेन आई यूज द वर्ड सब में जाएगा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक के रिलेटेड नहीं है, 2 के रिलेटेड है, बट फिर भी सब में जा रहा है. क्यों? तो क्या कोई बाइफर्केशन ही नहीं था. एग्जिस्टिंग लॉ में क्या लिखा था? या तो एक के रिलेटेड है या तो एक से ज्यादा के रिलेटेड है. अगर एक के रिलेटेड है तो एक में जाएगा, एक से ज्यादा के रिलेटेड है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, भले वो सबसे रिलेटेड ना हो, which is actually a mistake in law and that has been modified. What is revised provision? Friend, revised provision में अब 2 बाइफर्केशन की जगह 3 हो गए. पहला बाइफर्केशन क्या? सर्विस रिलेट्स टू 1 यूनिट. सर्विस रिलेट्स टू 1 यूनिट. दूसरा बाइफर्केशन क्या? Service relates to more than 1 unit but not all units. Very important friends. Service relates to more than 1 unit but not all units. So अगर अब मैं बोलूं ना कि सर्विस खाली मुंबई के रिलेटेड है, ओके वहां पे जाएगा. अगर मैं बोलूं सर्विस मुंबई और चेन्नई के रिलेटेड है तो दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट अ सेपरेट पॉइंट जो ओल्ड प्रोविजन में नहीं था. और फ्रेंड, तीसरा प्रोविजन तो है ही क्या? तो क्या सर्विस रिलेट्स टू ऑल यूनिट्स. So now we have 3 bifurcation. Service relates to only 1 unit, service relates to more than 1 unit but not all units, and third, service relates to all the units. So अब अगर ऐसा हो कि हम लोग कोई ऐसी सर्विस की बात कर रहे हैं जो सबके रिलेटेड है तो सब में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पहले भी होता था. कोई एक के रिलेटेड है तो एक में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पहले था.
बट एक से ज्यादा के रिलेटेड है बट सबके रिलेटेड नहीं है, तो अब उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा रादर देन ऑल. And that is one of the first change which has been brought by Finance Act 2016. So please keep that in mind कि अब अगर मैं ये बोलूँ ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 सर्विस दे रहा हूँ. पहली, मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट सर्विस की. एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिया? तो कि एक ऐसे न्यूज़पेपर में, सॉरी न्यूज़पेपर तो एग्जाम्प्ट है, बट एक ऐसे मैगजीन में जो खाली मुंबई में सर्कुलेट होता हो. तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट खाली मुंबई को ही मिलना चाहिए. भले ने एडवर्टाइजमेंट सर्विस वाला बिल ऑफिस पे दे अहमदाबाद, अगर अहमदाबाद ऑफिस पे बिल देगा तो अहमदाबाद ऑफिस अंडर ISD कैटेगरी रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा क्रेडिट अहमदाबाद से मुंबई पे ट्रांसफर कर पाएगा. दूसरा पॉसिबिलिटी, मान लो कि हम मुंबई और चेन्नई दोनों में सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं. अगर हम मुंबई और चेन्नई दोनों में सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं तो फ्रेंड्स वी नीड टू कीप दैट इन माइंड. इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑल बट इट इज नॉट रिलेटेड टू इवन वन, सो वी आर समवेयर इन बिटवीन. सो if it is related to more than one but not all, then it shall be distributed among 2 units, not 1 unit. Friends, keep my word, it should be distributed in those units to which it relates. If it relates to only 1 unit, it will go to 1 unit. If it relates to more than 1 unit but not all, then it will go only in those units. एंड फ्रेंड, तीसरा पॉसिबिलिटी, मान लो कि हम रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करवाते हैं हर एक रीजियन के अंदर, और अगर हर एक रीजियन के अंदर हम लोग रिसर्च एक्टिविटी करवाते हैं तो फ्रेंड्स आई बिलीव यू अंडरस्टैंड इट रिलेट्स टू ऑल द यूनिट्स, एंड इफ इट रिलेट्स टू ऑल द यूनिट्स देन द क्रेडिट शुड गो टू all the units. So friends, this is what we understand, very important कि when I say कोई भी सर्विस जो एक यूनिट के रिलेटेड हो तो पूरा का पूरा क्रेडिट कहाँ जाएगा? उसी यूनिट पे जाएगा. दूसरा, कोई भी सर्विस जो एक से ज़्यादा यूनिट के रिलेटेड हो बट नॉट ऑल, तो क्रेडिट कहाँ जाएगा? तो उन यूनिट्स में जाएगा जिसके वो रिलेटेड है, और अगर वो सब के रिलेटेड है तो सब में जाएगा. अच्छा, कोई बोले सर ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो क्या? फ्रेंड्स, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो ओल्ड प्रोविजन है. क्या? तो के ओल्ड प्रोविजन ये था कि क्रेडिट शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर कौन सा? तो के टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर का टर्नओवर नहीं. आपको कौन सा टर्नओवर लेना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेके क्रेडिट सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद ही होगा ओल्ड प्रोविजन में ये भी एक पॉइंट था कि अगर कंपनी का ही फर्स्ट ईयर हो तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर होगा ही नहीं. अच्छा, मान लो कि कंपनी का फर्स्ट ईयर नहीं है, कंपनी ओल्ड था, जब 3 फैक्ट्रीज है, हमने चौथा फैक्ट्री स्टार्ट किया, न्यू फैक्ट्री स्टार्ट किया, तो उस सिचुएशन में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 3 फैक्ट्री का टर्नओवर है, चौथे का नहीं है. तो फ्रेंड, ओल्ड प्रोविजन में ऐसा लिखा ही था. क्या? तो कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सबका टर्नओवर ना हो, सारे यूनिट्स का टर्नओवर ना हो, या कोई भी एक यूनिट का टर्नओवर ना हो, तो दोनों सिचुएशन में रादर देन टेकिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वी हैव टू टेक प्रीसीडिंग क्वार्टर. फ्रेंड, माय वर्ड इज प्रीसीडिंग क्वार्टर. कौन सा क्वार्टर? वो प्रीसीडिंग क्वार्टर जिसमें सबका टर्नओवर अवेलेबल हो. तो या तो आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को बेस बना के क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करो, या आप प्रीसीडिंग क्वार्टर को बेस बना के क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करो. आई होप वी अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड्स. अच्छा, एक और पॉइंट भी था ओल्ड प्रोविजन में, बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा था कि भाई जो भी क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट करो वो ऑपरेशनल यूनिट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल है. When I use the word as existing operational है, माने क्या फ्रेंड्स? ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो चारों यूनिट्स है वो हम पिछले 10 साल से चला रहे हैं, बट कोलकाता यूनिट हमने इस साल क्लोज कर दिया. तो अगर कोलकाता यूनिट हमने इस साल क्लोज कर दिया तो इस साल हम जब भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने बैठे ना तो कोलकाता इज नॉन ऑपरेशनल फॉर अस, and because it is not operational for us, so we have to distribute credit only in operational units. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टर्नओवर कौन सा? प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ले लो, बट याद रखना ये टर्नओवर मत काउंट करना, बाकी के 3 टर्नओवर काउंट करके उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो. प्लीज कीप दैट इन माइंड कि हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट डिस्ट्रीब्यूट तो इस साल में जो यूनिट ऑपरेशनल हो उसी में होने चाहिए. सो प्रीसीडिंग ईयर में कोई ऑपरेशनल था बट करंट ईयर में ऑपरेशनल नहीं है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. डिस्ट्रीब्यूट इस साल में जो ऑपरेशनल यूनिट है उसी में होगा, बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अच्छा
फ्रेंड्स ये जो भी है ये सारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। अच्छा, कोई बोले सर क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेस्ड ऑन इनवॉइस, बिल, चालान और एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। माने क्या, तो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसने हमारी ऑफिस के नाम का बिल सर्व किया है, तो उसके ऊपर से हमने ऑफिस पे क्रेडिट लिया। अब ये ऑफिस को हमने अलग से रजिस्टर करवाया है एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस। तो ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है ना, वो इनवॉइस, बिल या चालान इश्यू करेगा इन सब के नाम पे, और उस इनवॉइस, बिल या चालान के ऊपर से हम इन सब जगह पे क्रेडिट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि कोई भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेस्ड ऑन ओनली इनवॉइस डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे सर्विस प्रोवाइडर के इनवॉइस से यहाँ पे क्रेडिट लिया, वैसे यहाँ से अलग इनवॉइस या बिल या चालान इश्यू किया जाएगा और वो यहाँ पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नाउ फ्रेंड, द सेकेंड चेंज which is more important, which is actually a welcome change for industries, lot of industries, giant industries, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा beneficial होगा। मैं example के तौर पे बताता हूँ आपको। Friends, there are companies like HUL, companies like ITC, companies like Cadbury's and many more, Nestle's and all, many more companies. Friend, ये ऐसी company है जिनके ज़्यादातर manufacturing job workers को hire करके किए जाते हैं, contract पे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब वर्कर्स को दिए जाते हैं अंडर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप। सो व्हेन आई से प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप, तो फ्रेंड जिन जॉब वर्कर को ये काम दिया गया है ना, एक्साइज ड्यूटी भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं जॉब वर्कर का होता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, पता है, आपने बहुत सारे गुड्स के पैकिंग के ऊपर भी देखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय में लिखा होगा कैडबरीज इंडिया, बट मैन्युफैक्चर्ड बाय में लिखा होगा जॉब वर्कर का नाम। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताए तो कैडबरी इंडिया का एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है, जॉब वर्कर है जिसका नाम है मैक्सन कन्फेक्शनरी। अब मैक्सन कन्फेक्शनरी कैडबरीज के लिए चॉकलेट्स बनाता है, डेयरी मिल्क बनाता है। तो आपने बहुत सारे डेयरी मिल्क एक्लेयर के ऊपर देखा भी होगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्सन कन्फेक्शनरी, मार्केटेड बाय तो के कैडबरीज इंडिया लिमिटेड। अब फ्रेंड, बिकॉज मार्केटिंग कैडबरीज इंडिया करता है, तो टीवी में जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वो कैडबरी इंडिया की तरफ से होता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, तो क्या मैक्सन कन्फेक्शनरी। एक्साइज किसको भरना है, मैक्सन कन्फेक्शनरी। क्रेडिट किसको चाहिए, मैक्सन कन्फेक्शनरी। जबकि एडवर्टाइजमेंट कौन दे रहा है, तो के कैडबरीज इंडिया लिमिटेड। तो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होगा, वो बिल किसको देगा, तो क्या कैडबरीज इंडिया लिमिटेड। पर अगर आप लॉजिकली सोचो तो उस एडवर्टाइजमेंट सर्विस की बात करें तो वो रिलेट तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से कर रहा है, और गुड्स मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, तो क्या मैक्सन। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो अलग कंपनी हो गए। एक कंपनी एडवर्टाइजिंग वर्क कर रहा है, दूसरा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पहली कंपनी एडवर्टाइजिंग वर्क कर रहा है इन रिलेशन टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दूसरी कंपनी। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये एडवर्टाइजिंग कंपनी, मार्केटिंग कंपनी कैडबरीज इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैक्सन कन्फेक्शनरी को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाए? तो फ्रेंड, दैट इज वेयर द सेकेंड चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 कम्स इन, जिसमें एक वर्ड रूल में ऐड किया है। क्या, तो कि यूनिट, पहले दो मतलब थे, कौन सा, तो कि अगर मैन्युफैक्चरर है तो फैक्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर है तो प्रीमाइसेस। अब उसमें तीसरा पॉइंट ऐड हुआ यूनिट में। क्या, तो कि अगर मैन्युफैक्चरर है तो फैक्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर है तो प्रीमाइसेस, एज वेल एज आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। व्हेन आई से आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फ्रेंड, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब वर्कर ओवर हियर। हमें अब ये बोला गया है कि क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। यूनिट इंक्लूड्स फैक्ट्री, प्रीमाइसेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी अगर कैडबरी इंडिया क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो अपनी खुद की फैक्ट्री हो तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर अपनी खुद की फैक्ट्री ना हो तो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, कोई बोले कि सर उनकी फैक्ट्री भी है और आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो एज आई सेड दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर अपनी ही फैक्ट्री है तो पूरा क्रेडिट अपनी ही फैक्ट्री में भेजेंगे। अगर खाली आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है तो पूरा का पूरा क्रेडिट आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज सकते हैं। अच्छा, कोई बोले कि सर उनके एक से ज़्यादा आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कोई बात नहीं, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है।
कैसे? तो कि बेस्ड ऑन टर्नओवर, विच इज द सेम क्राइटेरिया विच वी आर फॉलोइंग. बट नाउ द पॉइंट इज, अपार्ट फ्रॉम योर ओन फैक्ट्रीज वी ऑल्सो कंसिडर वन मोर थिंग एंड दैट इज आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. सो अगर मान लो कि यही ए लिमिटेड की अपनी खुद की 4 फैक्ट्रीज है, उसके अलावा 5वां उनका आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कहीं पे बेंगलोर में सिचुएटेड है. तो ये जो आउटसोर्स यूनिट है ना, तो क्रेडिट इन 4 में तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही सकता है, बट क्रेडिट यहाँ पे भी जाएगा. चाहे कोई बोले सर 5 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो कि अगर मान लो कि मैं ये अजम्पशन लेता हूँ कि 5 में सेम प्रोडक्ट बन रहा है और उसका टीवी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो फ्रेंड्स 5 की टोटल जो भी क्रेडिट होगी वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगी बेस्ड ऑन टर्नओवर. टर्नओवर as we understand preceding financial year और preceding quarter as the case may be. हाँ, एक चीज है जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. क्या? तो कि ऐसा हो सकता है ना, देखो चेन्नई फैक्ट्री में तुम खाली अपना टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, मुंबई फैक्ट्री में तुम अपना टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, दिल्ली फैक्ट्री में अपना टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, कोलकाता फैक्ट्री में अपना टर्नओवर जनरेट कर रहे हो. बेंगलोर में जो तुम्हारा आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर है ना, वो तुम्हारे लिए तो मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहा है, वो और 50 लोगों के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. तो उस सिचुएशन में जब तुम इस आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर लो, तो डोंट टेक हिज टोटल टर्नओवर, ओनली टेक दैट टर्नओवर in relation to which the input service, in relation to only that input service distributor who is transferring credit. माने अगर ए लिमिटेड के लिए तुम काम कर रहे हो, उसके अलावा और लोगों के लिए भी काम कर रहे हो ना, बट ए लिमिटेड जब क्रेडिट तुम्हें ट्रांसफर कर रहा है ना, तो ए लिमिटेड के कारण तुमने कितना टर्नओवर जनरेट किया, ए लिमिटेड के लिए तुमने कितना टर्नओवर जनरेट किया, वही टर्नओवर लेने का. माने इसका टोटल टर्नओवर मान लो कि हम लोग 200 लाख अज्यूम कर ले, बट उन 200 लाख में से 50 लाख ही उसने ए लिमिटेड के लिए किया. तो आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट ओनली 50 लाख विल बी काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन. ओनली 50 lakhs विल बी काउंटेड. अच्छा, जैसे अब क्रेडिट 4 जगह की जगह पे 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा फॉर एग्जांपल. नाउ द रेलेवेंट पॉइंट इज, जैसे क्रेडिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ से लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए क्रेडिट यूज कर सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं. वैसे ही अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो यहाँ से भी लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट प्लीज कीप दैट इन माइंड. अब जैसे मैंने बोला कि आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो तुम्हारे लिए जॉब वर्क कर रहा है, वो किसी और के लिए भी कर रहा है. तो जैसे तुम्हारे लिए वो जॉब वर्क कर रहा है, उसके लिए उसे लायबिलिटी होगा, वैसे किसी और के लिए भी जब वो जॉब वर्क कर रहा है तो उसके कारण भी उसका लायबिलिटी होगा. तो हमें क्या बोला गया है कि जितना ए लिमिटेड क्रेडिट इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पूरा का पूरा क्रेडिट इसे ए लिमिटेड के कारण जो लायबिलिटी जनरेट हो ना, उसी के लिए यूज करना है. कोई और बंदे के कारण लायबिलिटी जनरेट हो, उसके लिए यूज नहीं करना है. इसलिए अगर मान लो कि ए लिमिटेड के लिए आप जॉब वर्क कर रहे हो, तो आप ऑलवेज ध्यान रखना कि जब डिस्ट्रीब्यूशन करने बैठो तो ए लिमिटेड के कारण जितना टर्नओवर हुआ है ना, वही तुम काउंट करो. और मोर इंपॉर्टेंट, जितनी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो वो ए लिमिटेड के कारण जो लायबिलिटी आए ना, उसी के सामने सेट ऑफ करो. किसी और लायबिलिटी के सामने उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते. सो फ्रेंड, दिस इज द सेकेंड चेंज. टोटल 2 चेंज बताए मैंने. एक जो पॉइंट आया वो ये था कि सर्विस एक से ज्यादा यूनिट के रिलेटेड है, बट सबके रिलेटेड नहीं है, तो क्या करना. और दूसरा, अब क्रेडिट अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो ट्रांसफर हो ही सकता है, बट साथ में आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी ट्रांसफर हो सकता है. सो ये 2 चेंज है. हाँ फ्रेंड, एक और बहुत रेलेवेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. क्या? तो कि ये जो प्रोविजन आया ना, ये रूल 7, दैट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017. उसके पहले ये नहीं था. तो अगर 1 अप्रैल 2017 के पहले का कोई क्रेडिट पड़ा है ना, तो वो इन 4 में ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो आउटसोर्स यूनिट पे नहीं जा सकता. क्यों? तो कि उसके पहले ये प्रोविजन ही नहीं था. अमेंडमेंट कब से आया? 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल के बाद जो क्रेडिट आए ना, वो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकता है. उसके पहले का जितना भी क्रेडिट है वो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं जा सकता. वो अलग ही रखना पड़ेगा, आपको अलग मेंटेन करना पड़ेगा. 1 अप्रैल 2017 के बाद, अगर मैं कंसेप्ट बताऊं, कैडबरी मैक्सन को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. हाँ,
कब से? 1 अप्रैल 2017 के बाद जो सर्विस की क्रेडिट है वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसके पहले की सर्विस की क्रेडिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सो फ्रेंड प्लीज कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 31 मार्च 2017 तक की जितनी भी क्रेडिट है जो अनयूटिलाइज्ड है, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो करो, बट ये 4 जगह होगा, सॉरी ये जगह होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड दिस इज द फर्स्ट चेंज विच वी नीड टू कीप दैट इन माइंड इन रिलेशन टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये एक चेंज हुआ। फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर सेकेंड चेंज। Friends, let us understand the second provision. When I say second provision, we are talking about the input service credit which is available as per Rule 4, Sub-Rule 7 of Senate Credit Rules 2004. Friends, I believe you understand, you remember that कोई भी सर्विस का अगर हम क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए there is a time limit of 1 year in the law. Rule 4.7 very clearly says that credit can be claimed maximum within 1 year. 1 year from the date of invoice, 1 year from the date of bill, 1 year from the date of challan as the case may be. So it is like an independent chartered accountant is providing service to Navkar Institute. So friends, when I provide service to Navkar Institute, so I am actually serving a bill to them. Let's say अभी just फरवरी महीना ख़त्म हुआ है, फरवरी महीने में मैंने जो भी सर्विस प्रोवाइड किया उसका बिल मैं 1 मार्च को उन्हें सर्व करता हूँ। अबे अगर फरवरी महीने में मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड करूँ 1 मार्च को उसका बिल सर्व करता हूँ। एग्जाम्पल दे दे, 1 लाख रुपए का अगर इनवॉइस है and let's say 15,000 का सर्विस टैक्स है 15%, that includes basic as well as SBC as well as KKC. एंड एज ऑफ नाउ हम लोग ये पॉइंट को इग्नोर कर दे कि भाई एसबीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट 15,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। अब 1 मार्च को मैंने नवकार इंस्टीट्यूट को 1 लाख प्लस 15,000 सर्विस टैक्स माने 1,15,000 का बिल सर्व किया। मेरी सर्विस के ऊपर से नवकार इंस्टीट्यूट क्रेडिट लेगा, क्यों? तो कि आगे वो उस सर्विस को यूज कर रहे हैं इन कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू देयर स्टूडेंट्स। अब वो सर्विस का अगर उन्हें क्रेडिट लेना है ना तो दे कैन टेक दैट क्रेडिट मैक्सिमम विद इन 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बिल, चालान एज द केस में बी। सो अगर मेरे इनवॉइस से क्रेडिट ले रहे हैं, इनवॉइस डेट कौन सा है? 1 मार्च 2017, तो वहां से मैक्सिमम वो 1 ईयर के अंदर क्रेडिट ले पाएंगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 1 ईयर खत्म हो गया और 1 ईयर के अंदर उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया तो फ्यूचर में क्रेडिट लेना पॉसिबल नहीं है। क्रेडिट कैन बी क्लेम मैक्सिमम विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बिल, चालान। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि सर्विस फॉल्स अंडर आरसीएम, सो नॉट अ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो नॉर्मल मैंने बताया वो फॉरवर्ड चार्ज है, but RCM is reverse charge mechanism. When I say reverse charge mechanism, that means the responsibility to pay service tax is not on service provider but on service receiver. So अब मेरा इनवॉइस अगेन 1 मार्च को सर्व होगा, बट उसमें विदाउट सर्विस टैक्स होगा, बिकॉज अब तो नवकार इंस्टीट्यूट खुद गवर्नमेंट को जाकर सर्विस टैक्स पे करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं नवकार को सर्विस दे रहा हूँ, वो मेरे इनवॉइस के ऊपर से क्रेडिट ले के वो अदरवाइज क्रेडिट ले, वो इनपुट सर्विस का क्रेडिट ले रहा है। माने मैं नवकार को सर्विस दे रहा हूं तो उनके लिए वो इनपुट सर्विस हुआ। अब उसमें जो सर्विस टैक्स लगता है वो अमाउंट वो मुझे दे ने मैं गवर्नमेंट को दूं, कि वो खुद ही गवर्नमेंट को दे। दोनों केस में वो क्रेडिट किसका ले रहे हैं? सर्विस का, इनपुट सर्विस। तो अगर मैं नवकार को सर्विस दे रहा हूं तो उनको उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा। अब वो मुझे दे और मैं गवर्नमेंट को पे करूं तो दैट मीन्स वो मेरे इनवॉइस के ऊपर से क्रेडिट ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रूफ क्या कि उन्होंने सर्विस टैक्स भरा। वो खुद तो गवर्नमेंट को भरने गए नहीं, उन्होंने सर्विस टैक्स मुझे दिया, मैंने गवर्नमेंट को भरा, तो उनके पास प्रूफ क्या कि उन्होंने सर्विस टैक्स भरा, तो कि मेरा इनवॉइस, तो क्या वो क्रेडिट मेरे इनवॉइस के ऊपर से लेंगे तो वहाँ से 1 ईयर कैलकुलेट करने का। बट अगर मान लो कि आरसीएम है तो अब वो मुझे थोड़ी देंगे सर्विस टैक्स, वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स पे करेंगे। तो कि अगर डायरेक्टली वही गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स पे करेंगे तो क्या उनके पास प्रूफ क्या है कि उन्होंने सर्विस टैक्स भरा? तो क्या चालान, क्योंकि टैक्स पेमेंट चालान होगा ना, GAR 7 चालान विच वी यूज। तो क्या अब उन्हें उसके ऊपर से क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन सा? तो कि अगर इनवॉइस के ऊपर से क्रेडिट लेना है तो इनवॉइस से, बट आरसीएम में, इनवॉइस में तो सर्विस टैक्स चार्ज ही नहीं होता है कि कोई उसके ऊपर से क्रेडिट ले। तो आरसीएम में
कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर से क्रेडिट मिलेगा, तो कि एक ही डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है कि आपने टैक्स भरा है एंड दैट इज चालान, तो कि चालान के ऊपर से क्रेडिट मिल जाएगा, बराबर। सो फ्रेंड, द स्टैंडर्ड पॉइंट इज क्रेडिट शैल बी क्लेम विद इन 1 ईयर, 1 ईयर from the date of invoice, bill, challan, as the case may be. Now there is an actual amendment in relation to this. Why? तो क्या हम बात कर रहे हैं right to use natural resources. Friends, what do we mean by right to use natural resources? Very important, ध्यान से समझना है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो वो हमें परमानेंट बेसिस पे सेल नहीं कर देते, ट्रांसफ़र नहीं कर देते, बट हमें कुछ पीरियड के लिए उसे एक्सप्लोर करने का मौका देते, जैसे कि माइंस, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम बीडिंग होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। हम कोई माइन का एग्जांपल ले लें, मान लो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक माइन लोकेटेड है जिसमें कोल माइन है, कोल एक्सट्रैक्शन होता है। अब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को ये राइट असाइन करना चाहता है, माने खुद गवर्नमेंट एक्सप्लोर नहीं करना चाहता उसको, गवर्नमेंट वांट्स टू असाइन दैट टू सम प्राइवेट कंपनी। तो उसके लिए एक टेंडर निकला, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, मान लो कि हम उस टेंडर में बीडिंग करते हैं, जो अमाउंट अग्री हुआ था, जो अमाउंट हमने बीडिंग किया है फॉर एग्जांपल इज 100 करोड़ प्लस सर्विस टैक्स व्हाटएवर। क्यों सर्विस टैक्स फ्रेंड? तो कि गवर्नमेंट ये जो कोल माइन है उसे हमें एक्सप्लोर करने का थोड़े टाइम के लिए राइट दे रहा है। वो कोल माइन हमें ट्रांसफ़र थोड़ी कर देता है, अगर ट्रांसफ़र करे तो ये वैट का मैटर है, बट वो हमें थोड़े टाइम के लिए असाइन कर रहा है उसे यूज़ करने के लिए। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड एज सर्विस कंपोनेंट अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, बिकॉज हम कंसिडरेशन भी दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला हमने 100 करोड़ का बीडिंग किया, मान लो कि वो टेंडर हम ही को मिल जाता है, हमारी फेवर में वो आइडेंटिफाई होता है कि भाई अब ये माइन एक्सप्लोर करने का राइट हमने आपको दे दिया, बराबर। अब फ्रेंड, बिकॉज गवर्नमेंट हमें ये सर्विस दे रहा है जिसके सामने हम 100 करोड़ का उन्हें कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो इट इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन विच इज़ एक्चुअली लायबल फॉर सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे 15 करोड़ का सर्विस टैक्स लगेगा। तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 100 करोड़ प्लस सर्विस टैक्स 115 करोड़ का होगा, और हमें भी जो टोटल पेमेंट करना है वो 115 करोड़ का ही करना है। अब वो 115 करोड़ का जब हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्रेडिट मिलेगा, कितना? तो क्या 15 करोड़ का। हमें फ्रेंड्स ध्यान से समझना, एकदम खास पॉइंट है इसमें, क्या? तो कि ये जो 15 करोड़ का आप सर्विस टैक्स पे करोगे ना, उसका क्रेडिट तो आपको मिलेगा, बट कैसे? तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये आएगा फ्रेंड कि ये जो हमने राइट हमें मिला है, जो हमने लिया हुआ है, कितने पीरियड का है? इज इट फॉर 1 ईयर? जो 115 करोड़ हमने पे किया वो 1 ईयर के लिए, तो कि लेट्स अज्यूम 10 साल के लिए। तो फ्रेंड अगर 10 साल के लिए है तो जो 15 करोड़ का हमने सर्विस टैक्स का क्रेडिट लिया है वो हमें क्या पूरा एक साथ लेना चाहिए या हमें 10 साल में डिवाइड करना चाहिए? फ्रेंड्स ध्यान से समझना, क्यों? तो कि ये जो 15 करोड़ का सर्विस टैक्स है उसका हमें क्रेडिट मिलेगा। मैं खाली बात कर रहा हूँ उस क्रेडिट को हम कब ले, पूरा का पूरा क्रेडिट एक साथ ले लें, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करें। फ्रेंड अगर अकाउंट्स के कंसेप्ट से जाए ना तो मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू कंसेप्ट आता है, जो बहुत क्लियर वर्ड्स में कहता है कि कॉस्ट आप एक साथ रिकॉर्ड करने की जगह रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में आइडेंटिफाई करो। तो अगर 10 साल तक आप कोल माइन एक्सप्लोर करोगे तो हर साल उसमें से रेवेन्यू अर्न करोगे, तो ये जो भी क्रेडिट है वो एक साथ क्यों ले रहे हो आप? आपको वो क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली 10 साल में डिवाइड करना चाहिए। बट फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कि ये पॉइंट है ना जो बीच में आ रहा है, जो कहता है कि कोई भी सर्विस का क्रेडिट आप मैक्सिमम कितने साल में ले सकते हो? 1 ईयर। और हम बात कर रहे हैं 10 साल में डिवाइड करने की, माने 15 करोड़ है तो हर साल 1.5 करोड़ के लिए हम 10 साल में डिवाइड करें। जबकि ये कहता है कि क्रेडिट मैक्सिमम 1 ईयर में लेने का, इनवॉइस, बिल, चालान, एज द केस में भी। कोई बोले यहाँ पे इनवॉइस, तो फ्रेंड यहाँ पे एक्चुअल इनवॉइस नहीं होगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वुड सर्व एज इनवॉइस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट होगा ना, वहाँ से 1 ईयर के अंदर क्रेडिट ले लेना पड़ेगा। अब अगर आप ये बोलो कि मैं 10 साल में हर साल 1.5 करोड़ लेना चाहता हूं, तो पहले साल तो 1.5 करोड़ 1 ईयर के कारण मिल जाएंगे, बट दूसरे साल से क्रेडिट लोगे कैसे? क्योंकि ये आपको रोकेगा। तो फ्रेंड इसी पॉइंट को ओवर रूल करने के लिए ओरिजिनल रूल को वहीं पे रखा है, बट उसमें एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ। क्या एक्सेप्शन क्रिएट हुआ? तो फ्रेंड जो एक्सेप्शन है उसमें ये बोला है कि अब आपको कोई भी सर्विस का क्रेडिट लेना है ना तो वो 1 ईयर में लेना है,
बट अगर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स वाली सर्विस है, अगर उसका क्रेडिट लेना है तो उस सिचुएशन में आपको पूरा क्रेडिट एक साथ नहीं लेना है, 1 साल का टाइम लिमिट ही अप्लाई नहीं होगा, रादर यहाँ पे उन्होंने 3 साल का लिमिट रखा हुआ है। क्या प्रोविजन है? तो कि ऐसा बोला है कि सर्विस टैक्स पेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो 15 करोड़ का सर्विस टैक्स हम इस साल पे करेंगे, उसकी क्रेडिट शैल बी इवनली स्प्रेड इवनली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। माने 15 करोड़ आप एक साथ नहीं लोगे। अच्छा, आप 10 साल में भी डिवाइड नहीं कर सकते, भले ने राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स 10 साल के लिए, कॉस्ट मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट, इसके हिसाब से 10 साल अंडरस्टैंडेबल है, बट हमारा प्रोविजन क्या कहता है? तो कि 3 साल में इक्वली डिवाइड करो। माने इस साल 5 करोड़ लो, नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ लो, उसके नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ लो। माने भरने का 15 करोड़ इस साल, बट क्रेडिट 5-5 करोड़ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड, विनय से 5-5 करोड़ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट कि ये जो 5 करोड़ मिलेगा हमें कब मिलेगा? तो कि इस साल मिलेगा। और 5 करोड़ मिलेगा कब मिलेगा? तो कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अब फ्रेंड, अगर मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, अगर मैं इस पॉइंट को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें तो कि मान लो कि हम लोग टोटल 15 करोड़ का सर्विस टैक्स पे करने वाले हैं। तो जो 15 करोड़ का सर्विस टैक्स पे करेंगे ना पहले इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट ईयर में ही 15 करोड़ का, उसमें से 5 करोड़ अब मिलेगा, 5 करोड़ बाद में मिलेगा, और 5 करोड़ उसके भी बाद में मिलेगा। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जहां पे हमने 15 करोड़ एक साथ भर दिया है। बट फ्रेंड्स, क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा 15 करोड़ आप एक साथ ही भर दो? माने ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट हमें ये ऑप्शन दे कि जो 100 करोड़ का आपने बीडिंग किया हुआ है विथ 15 करोड़ सर्विस टैक्स, माने 115 करोड़ टोटल जो आप पे करने वाले हो, उसके सामने तुम्हें बेनिफिट एक साथ मिलने वाला है कि 10 साल में मिलने वाला है? तो क्या 10 साल में मिलने वाला है, तो क्या फिर क्यों फुल पेमेंट अभी कर रहे हो? अगर गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे कि 100 करोड़ का पेमेंट आप 10 साल में इक्वली डिवाइड कर लो, तो दैट मीन्स हर साल कितना करोगे? तो क्या 10 करोड़। तो क्या हर साल सर्विस टैक्स कंपोनेंट कितना होगा? तो क्या 1.5 करोड़। तो फ्रेंड, एकदम ध्यान से समझना है, यहां पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सर्विस टैक्स पेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। सो टोटल भले 15 करोड़ है, बट इस साल में कितना सर्विस टैक्स पे करोगे? तो कि इस साल में 15 करोड़ पे नहीं होगा, इस साल में कितना पे होगा? 1.5 करोड़। तो कि अगर इस साल में 1.5 करोड़ पे होगा, तो सर्विस टैक्स पेड इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी स्प्रेड इवनली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। मीनिंग कि अगर मैं टोटल 15 करोड़ इस साल पे करूं ना, तो वो 5-5-5 3 साल में डिवाइड होगा। अगर मैं इस साल 1.5 करोड़ पे करूं ना, तो दैट मीन्स इस साल मुझे 50 लाख मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 50 लाख मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 50 लाख मिलेगा। फ्रेंड्स, लेट अस आइडेंटिफाई दैट इन दिस पॉइंट। अगर मैं बात करूं सेम चीज के लिए कि यही एग्जांपल में हम लोग ये अजम्पशन ले कि आप हर साल 1.5 करोड़ का सर्विस टैक्स पे कर रहे हो, तो फ्रेंड्स, जो पहला 1.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट आपने भरा होगा ना, वो फर्स्ट ईयर में 50 लाख अलाउ होगा, सेकेंड ईयर में 50 लाख अलाउ होगा, और थर्ड ईयर में 50 लाख अलाउ होगा। अच्छा, जो सेकेंड 1.5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट आप पे करने जाओगे ना फ्रेंड्स, वो 1.5 करोड़ फर्स्ट ईयर में तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस साल पे करो वहां से इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर सेकेंड ईयर में पे किया है, तो सेकेंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पे किया ना, उसका क्रेडिट 50 लाख उस साल मिलेगा, और 50 लाख नेक्स्ट ईयर मिलेगा, और 50 लाख नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सेम वे जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा उसकी बात करें, तो वो थर्ड ईयर में ही पे किया है, तो अकॉर्डिंगली दिस 50 lakhs, दिस 50 lakhs एंड दिस 50 lakhs। तो फ्रेंड, ऐसे अगर हम 10 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड ईयर का सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड ईयर का थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ ईयर का फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो 10th ईयर का 10th 11th एंड 12th में डिवाइड होगा। अच्छा, कोई बोले कि सर अगर हम क्रॉस टैली करना चाहे तो आप करो, कैसे पता है? फर्स्ट ईयर में आप टोटल 1.5 करोड़ का सर्विस टैक्स भरोगे, बट क्रेडिट 50 लाख का ही मिलेगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आप और 1.5 करोड़ भरोगे, बट फ्रेंड सेकेंड ईयर में क्रेडिट 1 करोड़ मिलेगा। कौन सा 1 करोड़? तो क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सेकेंड ईयर वाला क्रेडिट, ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट ईयर वाला क्रेडिट। अच्छा, तीसरे साल जो 1.5 करोड़ पे करोगे ना, वो 1.5 करोड़ के सामने क्रेडिट भी 1.5 करोड़ ही होगा।
अच्छा कौन सा 1.5 करोड़? तो कि फर्स्ट ईयर का 3rd इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर का 2nd इंस्टॉलमेंट और 3rd इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 3rd पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉरी। सो टोटल आपको 3rd ईयर में 1.5 करोड़ के सामने 1.5 करोड़ मिलेगा, 4th ईयर में 1.5 करोड़ के सामने 1.5 करोड़, 5th ईयर में 1.5 करोड़ के सामने 1.5 करोड़, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 10th ईयर में भी 1.5 करोड़ भरोगे और 1.5 करोड़ का ही क्रेडिट मिलेगा। वो कौन सा 1.5 करोड़ होगा? 8th इंस्टॉलमेंट जो भरा होगा ना उसका 3रा साल होगा, 9th इंस्टॉलमेंट जो भरा होगा ना उसका 2रा साल होगा, और 10th इंस्टॉलमेंट जो भरा होगा ना उसका 1ला साल होगा। अच्छा अब 11th ईयर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई से 11th ईयर, तो कि 11th ईयर में जो तुम भरने वाले हो, तो कि नहीं मेरे को तो भरना ही कहाँ है क्योंकि 10 साल का ही तो राइट है, तो कि 11th ईयर में जो मैं भरने वाला हूँ ना, लॉजिकली उसके लिए प्रोविजन ये आएगा कि 11th ईयर में मैं कुछ भरूंगा नहीं, बट तो भी मुझे 1 करोड़ का क्रेडिट मिलेगा। कौन सा 1 करोड़? तो कि 9th ईयर का 3rd ईयर ने, 10th ईयर का 2nd ईयर, और 12th ईयर अगेन मैं कुछ नहीं भरने वाला, तो भी 50 लाख का क्रेडिट मिलेगा। कौन सा 50 लाख? तो कि 10th ईयर का 3rd ईयर। सो फ्रेंड ये इक्वली डिवाइड होने की बात है। यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब इसमें एक और ज्यादा चेंज है, रेलेवेंट चेंज है। क्या? तो कि ऐसा बोला गया है लॉ में कि जब गवर्नमेंट आपको ये राइट असाइन करता है तो वो सर्विस टैक्स आप उन्हें पे करते हो जिसका आप क्रेडिट लेते हो। नॉट नेसेसरी कि आप खुद जाके वो माइन एक्सप्लोर करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप खाली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, तो जैसे गवर्नमेंट ने राइट आपको असाइन किया है, आप ये राइट सब असाइन करो किसी को। अगर मान लो आप ये राइट किसी को सब असाइन कर रहे हो, तो कैन से कि जैसे गवर्नमेंट ने आपको 100 करोड़ में 15 करोड़ के हिसाब से सर्विस टैक्स चार्ज किया है, आप जब सब असाइन करोगे तो आप 120 करोड़ चार्ज करो उसको, तो उसके ऊपर 15% काउंट करोगे तो 18 करोड़ का सर्विस टैक्स आएगा। यानी आप गवर्नमेंट को 15 करोड़ का सर्विस टैक्स पे कर रहे हो और उससे 18 करोड़ का सर्विस टैक्स रिकवर कर रहे हो। तो 18 करोड़ जब आप उससे सर्विस टैक्स रिकवर करोगे तो उसने भी तो 18 करोड़ का सर्विस टैक्स भरा है, तो क्या उसको 18 करोड़ का क्रेडिट मिलेगा? तो क्या उसके लिए भी आपको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है? कैसे? मैं बता रहा हूं यहां पे आपको, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इट हैज बीन मेंशन कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल है व्हेन सच राइट इज एक्वायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर प्रोविजन, एनी अदर पर्सन। माने हमने गवर्नमेंट से लिया, बट जो हमसे राइट ले रहा है वो ले तो राइट, वो कौन सा राइट ले रहा है? राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स। जब भी राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स आएगा तो ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो राइट तुमने गवर्नमेंट से एक्वायर किया हो कि तुम कोई थर्ड पार्टी से एक्वायर करो, क्योंकि प्रोविजन में बहुत क्लियरली बोला है कि इट इज एप्लीकेबल व्हेन सच राइट इज एक्वायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट से लो या लोकल अथॉरिटी से लो या कोई और पर्सन से लो। अब फ्रेंड माने जो हमारा जो सर्विस रिसीवर है ना, जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जब हमें 18 करोड़ पे करेगा ना, तो उसका भी 18 करोड़ का क्रेडिट 3 साल में ही इक्वली डिवाइड होगा। विनाई से 3 साल में इक्वली डिवाइड होगा, माने अगर हम उसको आज असाइन कर रहे हैं तो इस साल में उसको 6 करोड़ मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में उसको 6 करोड़ मिलेगा, उसके भी नेक्स्ट ईयर में उसको 6 करोड़ मिलेगा, उसका भी क्राइटेरिया इक्वली ही डिवाइड होगा। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, विनाई से जैसे हमको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि 100 करोड़ आप 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करो, तो हम हर साल 10 करोड़ पे कर रहे हैं, तो हर साल हम 1.5 करोड़ का क्रेडिट पे करके ले रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम अपने रिसीवर को भी 120 करोड़ के लिए 10 साल अलाउ करें, माने इस साल तू 12 करोड़ भर, नेक्स्ट ईयर 12 करोड़ भर, उसके नेक्स्ट ईयर 12 करोड़ भर, उसके नेक्स्ट ईयर, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अब फ्रेंड्स उस इवेंट में वो भी 12 करोड़ के ऊपर 15% के हिसाब से 1.8 करोड़ का सर्विस टैक्स हर साल भरेगा। तो जिस साल में उसने 1.8 करोड़ का पहला भरा होगा ना, वहां से उसके भी 3 साल में डिवाइड होगा। सेकेंड ईयर में जो उसने वापस 1.8 भरा होगा ना, उसको भी 3 साल में डिवाइड करना है। ये सेम प्रोविजन जो हमारे केस में हुआ था, अब वो उसके केस में रीअसाइन होगा, सेम क्राइटेरिया। सो जैसे हमने आज सर्विस टैक्स भरा है तो हम 3 साल में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो उसने जो सर्विस टैक्स आज भरा होगा वो भी इक्वली 3 साल में ही डिवाइड करेगा। तो फ्रेंड ये बहुत रेलेवेंट है, सो आपको ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा आपका
ध्यान लेना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम माइनर पॉइंट है, एकदम माइनर पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है, एक अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट में मान लो कि जो सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट हमें सर्विस दे रहा है, हम आगे किसी को सर्विस दे रहे हैं। लेट्स से गवर्नमेंट जब हमें सर्विस दे रहा है, हमारी कंपनी का नाम है XYZ, तो ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके ऊपर 15 करोड़ का सर्विस टैक्स है जिसकी हम क्रेडिट लेने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में 5 करोड़, सेकेंड ईयर में 5 करोड़ और थर्ड ईयर में और 5 करोड़। ये 3 साल में हमें मिल जाएगा। अब मान लो कि एज एन XYZ हम लोग ये आगे असाइन कर रहे हैं टू सम ABC। तो जब हम आगे असाइन करते हैं टू सम ABC, लेट्स से हमने अज्यूम किया 120 करोड़, बराबर है, और उसके ऊपर टोटल आया 18 करोड़। अभी ये 18 करोड़ क्या भी सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए, बट अगेन क्रेडिट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा क्रेडिट इक्वली? तो कि पहले साल में कितना मिलेगा, तो कि 6 करोड़, दूसरे साल में कितना मिलेगा, तो कि 6 करोड़, और तीसरे साल में कितना मिलेगा, तो कि 6 करोड़। सेम क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल। ये नॉर्मल क्राइटेरिया हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला आपको कि XYZ हमें 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 3 साल में मिलेगा, और ABC जो जिसको हमने सर्विस दिया है उसको 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 3 साल में मिलेगा। फ्रेंड्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एकदम ध्यान से समझ लेना है फ्रेंड्स। फॉरगेट कि ABC को 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ का क्रेडिट कब मिलेगा। फैक्ट ये है कि हम उससे 18 करोड़ पूरा का पूरा इस साल लेंगे, भले वो 18 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 3 पार्ट में उसे क्रेडिट मिले। फ्रेंड्स वो हमारा कंसर्न नहीं है, अब उसको भूल जाओ। हम तो उससे पूरा का पूरा 18 करोड़ इस साल लेने वाले, 120 करोड़ वैल्यू ऑफ सर्विस का, ने 18 करोड़ सर्विस टैक्स का। तो जब हम उससे 18 करोड़ इस साल लेंगे तो हमें भी तो 18 करोड़ गवर्नमेंट को एज अ सर्विस टैक्स पे करना है। अब अगर हमें 18 करोड़ एज अ सर्विस टैक्स पे करना है तो लॉजिकली अगर हम जाए ना फ्रेंड्स, तो इस केस में हमारे पास टोटल 5 करोड़ का ही क्रेडिट है, क्योंकि इस साल मुझे भरना 18 करोड़ है, बट क्रेडिट तो 5 करोड़ ही मिला है, बाकी का 5 करोड़ तो नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, और 5 करोड़ उसके भी नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। मिलेगा पूरा क्रेडिट, बट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। जबकि मुझे अभी कितना गवर्नमेंट को भरना है, तो क्या मुझे तो 18 करोड़ भरना है, तो ये 18 करोड़ भरने के लिए मैं ये 5 करोड़ का क्रेडिट लूँ, बाकी 13 करोड़ कैश में भरूँ, और फिर नेक्स्ट ईयर मेरे को 5 करोड़ और उसके नेक्स्ट ईयर मेरे को और 5 करोड़ का क्रेडिट मिलेगा, जिसका मेरे पास अब कोई यूज ही नहीं। तो फ्रेंड इसके लिए उन्होंने एक और रेलेवेंट प्रोविजन यहाँ पे रखा। क्या? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फर्दर असाइनमेंट की बात है, तो एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट हुआ है। क्या है वो स्पेशल प्रोविजन? तो ऐसा बोला है कि अमाउंट ऑफ बैलेंस एनुअल क्रेडिट। व्हेन आई यूज द वर्ड एज अमाउंट ऑफ बैलेंस एनुअल क्रेडिट, फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेने का। क्या होता है? तो कि फर्स्ट ईयर में मैंने 5 करोड़ का क्रेडिट लिया, जबकि भरा कितना? 15 करोड़। भरा 15 करोड़, लिया 5 करोड़, तो दैट मीन्स कैन आई से बैलेंस क्रेडिट हो गया। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ बैलेंस एनुअल क्रेडिट विच मीन्स 10 करोड़ एज डज नॉट एक्सीड द सर्विस टैक्स पेएबल। तो फ्रेंड हमारा सर्विस टैक्स पेएबल कितना है? तो कि अगर मैं सोचूं ना, तो टोटल सर्विस टैक्स पेएबल हमारा 18 करोड़ है। अब टोटल सर्विस टैक्स पेएबल हमारा 18 करोड़ है ड्यू टू फर्दर असाइनमेंट। टोटल सर्विस टैक्स पेएबल हमारा 18 करोड़ है, जिसके सामने ऑलरेडी 5 करोड़ की तो क्रेडिट है ही हमारे पास, तो वो तो हम सेट ऑफ करने ही वाले हैं। यानी बचा कितना? तो कि 13 करोड़। तो हमें बोला है कि अमाउंट ऑफ बैलेंस एनुअल क्रेडिट विच इज 10 करोड़ एज डज नॉट एक्सीड द सर्विस टैक्स पेएबल ड्यू टू फर्दर असाइनमेंट। तो टोटल सर्विस टैक्स पेएबल 18 है, बट वो तो 5 सेट ऑफ हो जाएगा। तो अब पेएबल कितना बचा? तो कि 13 करोड़ शैल बी क्लेम्ड इन दैट फाइनेंशियल ईयर ओनली। माने तो कि 13 करोड़ जो हमारा टोटल सर्विस टैक्स पेएबल है, उसके सामने हम पूरा 10 करोड़ का क्रेडिट उसी साल में ले सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप समझते हो, मैंने आपको ओरिजिनल ये रूल पढ़ाया कि क्रेडिट 3 साल में इक्वली डिवाइड करना है, बराबर। अब मैं ये बोल रहा हूँ
कि अगर आपका क्रेडिट बैलेंस जो बचा है वो क्रेडिट आप लेना चाहो ना तो उसी साल में आपको अलाउ होगा, प्रोवाइडेड दिस इज द कंडीशन। क्या? तो कि हमारा सर्विस टैक्स पेएबल आ रहा है ड्यू टू फर्दर असाइनमेंट। माने क्या? तो माने ये कि अगर फ्रेंड्स मैं खुद ही वो राइट कंज्यूम करने वाला हूं ना तो मुझे ये प्रोविजन देखना ही नहीं है, बट अगर मैं किसी को फर्दर असाइन करूं ना तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है पता है? जब मैं फर्दर असाइन करूं ना तो मुझे अपनी लायबिलिटी गिननी है। वो लायबिलिटी के सामने अगर मेरा क्रेडिट अमाउंट, वो लायबिलिटी के सामने अगर मेरा क्रेडिट अमाउंट एक्सेस बच रहा है, जो ये बैलेंस क्रेडिट है, तो मैं वो सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो कोई बोले तो सर जब भी फर्दर असाइन करें हर बार पूरा 10 करोड़ मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक इसी में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शॉर्ट एग्जांपल। मान लो कि जो पूरा माइन है ना, जो कोल माइन, उसमें से 20% पोर्शन हमने डिवाइड कर दिया और उसका एक्सप्लोरेशन राइट किसी और बंदे को दे दिया। अब उसके केस में हम लोग चार्ज कर रहे हैं, मान लो कि एक रैंडम अमाउंट, मान लो 30 करोड़ रुपया फॉर एग्जांपल चार्ज कर रहे हैं। तो फ्रेंड जब वो 30 करोड़ हम उसके केस में चार्ज कर रहे हैं तो उसके ऊपर 15% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो फ्रेंड्स हमारा टोटल सर्विस टैक्स कितना होना चाहिए? तो क्या 4.5 करोड़ होना चाहिए। अच्छा, वो 4.5 करोड़ हम उससे लेंगे। वो 4.5 करोड़ जब हम उससे लेंगे तो कहना से उसको 3 साल में 1.5 करोड़ का क्रेडिट मिलना चाहिए, बराबर। अच्छा, वो 1.5 करोड़ का वो क्रेडिट लेगा। अब उसको भूल जाओ, अब अपनी बात करो। तो अपनी बात करें तो कहना से कि मुझे टोटल उस साल में सर्विस टैक्स कितना भरना है? 4.5 करोड़। मुझे 4.5 करोड़ भरना है, जबकि मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा है? तो क्या 5 करोड़ पड़ा है। तो कि अगर 4.5 करोड़ भरना है और क्रेडिट 5 करोड़ पड़ा है तो मुझे कोई टेंशन ही कहाँ करना है। क्यों? तो कि मेरे पास ज़्यादा क्रेडिट पड़ा है ना, 4.5 करोड़ की लायबिलिटी है, तो मैं सेट ऑफ कर दूंगा, उल्टा 50 लाख में नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि हम लोग 20% पोर्शन किसी को असाइन कर देते हैं फर्दर, और उससे हम लोग जो टोटल कंसिडरेशन लेते हैं वो 50 करोड़ है फॉर एग्जांपल। तो 50 करोड़ है तो उसके ऊपर 15% फ्रेंड्स अगर आप काउंट करोगे ना तो कितना आएगा? तो क्या 7.5 करोड़ आएगा। अच्छा, वो 7.5 करोड़ हम उससे लेंगे, वो 2.5 करोड़ के हिसाब से 3 साल में क्रेडिट ले जाएगा। बट वो भले 3 साल में क्रेडिट ले, हमें तो 7.5 करोड़ अभी मिल रहा है, तो हमें भी गवर्नमेंट को इसी साल भरना है। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, हमें टोटल 7.5 करोड़ भरना है। पहले साल में हमें गवर्नमेंट को 7.5 करोड़ फर्दर असाइनमेंट के कारण भर देना है एज अवर टोटल सर्विस टैक्स लायबिलिटी, जिसके सामने पहले साल में हमने तो 5 करोड़ का ही क्रेडिट लिया था। तो 7.5 करोड़ में से हम 5 करोड़ तो सेट ऑफ कर देंगे, बचा कितना? 2.5 करोड़। तो फ्रेंड मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि क्या बोला है, तो कि अमाउंट ऑफ बैलेंस एंड विद क्रेडिट, वो बैलेंस तो आज भी 10 करोड़ ही है हमारे पास, as does not exceed the service tax payable due to further assignment। तो क्या फर्दर असाइनमेंट के कारण हमारा सर्विस टैक्स पेएबल टोटल 7.5 आता है, बट 5 तो तुमने सेट ऑफ कर दिया ना, तो पेएबल कितना बचा? तो क्या 2.5 करोड़। तो क्या अब तुम जो बैलेंस क्रेडिट है उसको उसी साल में क्लेम कर लो, as does not exceed the service tax payable। तो इस सिचुएशन में आपको 2.5 करोड़ का ही क्रेडिट मिलेगा इस साल। फर्दर अगर एग्जांपल ले, मान लो कि हम अगेन थोड़ा प्रपोर्शन किसी और बंदे को असाइन कर देते हैं, तो अगेन किसी और बंदे को असाइन कर दे तो आप सोचो क्या? तो कि जब असाइन करने की बात आई तो कि मान लो कि उसको हम असाइन कर रहे हैं और कोई पोर्शन फर्स्ट ईयर में ही उसको भी असाइन कर रहे हैं, कितना? तो क्या और कोई 30% असाइन किया। कंसिडरेशन कितना लिया? तो कि मान लो कि 40 करोड़ उससे कंसिडरेशन लिया, 15% सर्विस टैक्स काउंट करो, कितना हो गया? 6 करोड़ हो गया। 6 करोड़ टोटल सर्विस टैक्स उससे हम लेंगे, उसको 2-2 करोड़ 3 साल में क्रेडिट मिल जाएगा। वो जो हमें 6 करोड़ देगा, वो 6 करोड़ हमें गवर्नमेंट को एज अ सर्विस टैक्स पे करना है। अच्छा, कब पे करेंगे? पहले साल में ही पे करेंगे ना फ्रेंड्स। तो अब अगर आप सोचेंगे ना तो आपका टोटल पहले साल का सर्विस टैक्स पेएबल क्या होगा पता है? जो पहले वाले बंदे का 7.5 करोड़ पेएबल हुआ, दूसरे वाले बंदे का 6 करोड़ पेएबल हुआ। प्लीज ध्यान से समझना है, पहले वाले बंदे का 7.5 करोड़ का सर्विस टैक्स पेएबल है 50 करोड़ के ऊपर, दूसरे वाले बंदे का 6 करोड़ का सर्विस टैक्स पेएबल है, तो दैट मीन्स टोटल 13.5 करोड़ का आपका सर्विस टैक्स पेएबल है। अच्छा, 13.5 करोड़ का आपका सर्विस टैक्स पेएबल है। केनाई से उस 13.5 में से अगर मैं ये बोलूं कि 5 करोड़ तो मेरे को वैसे भी सेट ऑफ करना ही है, कौन सा 5 करोड़? तो 15 करोड़ जो हमने भरा था उसमें 5 अभी मिला ना,
तो वो तो हम सेट ऑफ कर देंगे। तो वो 5 करोड़ जब हम सेट ऑफ कर देंगे तो कैन आई से 8 करोड़ हमारा सर्विस टैक्स पेएबल है। अच्छा, हमारे पास बैलेंस क्रेडिट कितना पड़ा है फ्रेंड्स? तो क्या अगर हमारे पास बैलेंस क्रेडिट की बात करें, टोटल बैलेंस क्रेडिट 10 करोड़ है ना, तो अगर उसी लॉजिक के हिसाब से जाए तो कि अमाउंट ऑफ बैलेंस एनवेट क्रेडिट 10 करोड़ है, एज डज नॉट एक्सीड द सर्विस टैक्स पेएबल। सर्विस टैक्स पेएबल वैसे 13.5 था, बट 5 सेट ऑफ किया तो कितना बचा? 8। तो क्या हमें उस साल में यहाँ पे 8 करोड़ लिखना पड़ेगा, अभी उस सिचुएशन में 8 करोड़ लिखना पड़ेगा। एज डज नॉट एक्सीड द सर्विस टैक्स पेएबल ड्यू टू फर्दर असाइनमेंट। सर्विस टैक्स पेएबल कितना आ रहा है? 8 करोड़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें 8 करोड़ का क्रेडिट उस साल में मिल जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट समझा देता हूं इसमें। इसी पे ऐसा क्या हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में हमने असाइन किया प्रपोर्शन, फर्दर असाइन किया प्रपोर्शन, सेकेंड ईयर में हमने कुछ और प्रपोर्शन फर्दर असाइन किया। सेम एग्जांपल में जा रहे हैं, जिसमें जो हमने 50 करोड़ पे कुछ पोर्शन असाइन किया था, जिसमें 7.5 करोड़ था, वो हम फर्स्ट ईयर में असाइन करते हैं। सेकेंड ईयर में कुछ और प्रपोर्शन हम असाइन करते हैं, जो हमने 40 करोड़ वाला पॉइंट लिया। तो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में मेरा सर्विस टैक्स लायबिलिटी कितना अराइज होगा फ्रेंड? तो अगर फर्स्ट ईयर में मैं अपना सर्विस टैक्स लायबिलिटी गिनने जाऊं ना, तो फर्स्ट ईयर में मेरा टोटल सर्विस टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए 7.5 करोड़ फ्रेंड्स। ये 7.5 करोड़ मेरा फर्स्ट ईयर का टोटल सर्विस टैक्स लायबिलिटी होगा, जिसके सामने 5 करोड़ का तो मैंने फर्स्ट ईयर में क्रेडिट लिया ही होगा, तो 2.5 करोड़ बचा होगा मेरे पास। ये 2.5 करोड़ हमने फर्दर असाइनमेंट के लिए रखा होगा। तो क्या बैलेंस एनवेट क्रेडिट 10 करोड़ है एंड द टोटल सर्विस टैक्स पेएबल ड्यू टू फर्दर असाइनमेंट 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो 2.5 करोड़ का भी क्रेडिट मैंने ले लिया होगा। तो अगर मैं अपना फर्स्ट ईयर का बुक सेटल करने जाऊं ना, तो 7.5 करोड़ का सर्विस टैक्स पेएबल है, 5 करोड़ का नॉर्मल तरीके से क्रेडिट मिला, 2.5 करोड़ का इस रूल के कारण क्रेडिट मिला, 7.5 जीरो हो गया। अब मैं सेकेंड ईयर में जाता हूं फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर में आप चेक करो, अब आपके पास बैलेंस क्रेडिट कितना पड़ा होगा? 10 लाख होगा क्या? 7.5 करोड़, तो क्या 7.5 करोड़ होगा, बराबर। अब सेकेंड ईयर के बिलिंग में जाए फ्रेंड, 40 करोड़ का था, 40 करोड़ के ऊपर 15% के हिसाब से हमने कितना चार्ज किया? 6 करोड़। वो 6 करोड़ का क्रेडिट वो तो 3 साल में ले लेगा, बट सेकेंड ईयर में मेरा सर्विस टैक्स पेएबल 6 करोड़ है। अच्छा, सेकेंड ईयर में जब मैं मेरा सर्विस टैक्स पेएबल 6 करोड़ गिनने जा रहा हूं, चलो मान लो आपको सेकेंड ईयर का और 5 करोड़ मिल गया क्रेडिट फॉर एग्जांपल, तो भी कहना से 1 करोड़ तो पेएबल बचता ही है अभी भी आपका। तो सेकेंड ईयर में हम वापिस यही रूल अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे? तो कि अमाउंट ऑफ बैलेंस एनवेट क्रेडिट विच वाज 7.5 करोड़ as does not exceed the service tax payable due to further assignment which is as of now 1 crore. So that means again हम 1 करोड़ का क्रेडिट ले पाएंगे। यानी अगर आप टोटल काउंट करो ना, तो टोटल आपको सेकेंड ईयर में कितना मिला? तो क्या 5 करोड़ लीगल वाला जो नॉर्मल मिलता है और 1 करोड़ एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ दिस रूल। એટલે पहले साल में आपने टोटल कितना क्रेडिट लिया? तो क्या 5 करोड़ ये नॉर्मल वाला, 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा लिया। दूसरे साल में आपने कितना लिया? 5 करोड़ नॉर्मल वाला, 1 करोड़ एक्स्ट्रा, यानी ये 7.5 करोड़, ये 6 करोड़, 13.5 करोड़ तो आपने 2 साल में ही ले लिया फ्रेंड्स। अब बचा कितना? 1.5 करोड़। वो कब मिलेगा? लास्ट ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंस है रूल 7 इनपुट सर्विस में आए चेंज का। किसके कारण आया? राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज के कारण। तो फ्रेंड्स ये एक वन ऑफ द फंडामेंटल चेंज रहेगा यहाँ। फ्रेंड्स अब एक दो छोटे छोटे चेंजेस कवर कर लेते हैं। जैसे कि वन ऑफ द बेसिक चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इज बिकॉज ऑफ द ज्वेलरी। फ्रेंड्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के कारण छोटे छोटे चेंजेस आए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, तो ज्वेलरी पे फाइनेंस एक्ट 2016 तक एक्साइज नहीं था, एंड बिकॉज ज्वेलरी पे फाइनेंस एक्ट 16 के बाद एक्साइज का पोर्शन कवर हो गया, तो उसके कारण उस इंडस्ट्री में 2-3 रेलेवेंट चेंजेस आए हैं। द फर्स्ट चेंज फ्रेंड्स, आपको याद हो तो एसएसआई के लिमिट्स हम डिस्कस कर रहे थे। एक्साइज में हमने एसएसआई पढ़ा है। एसएसआई में आपको याद हो तो हम लोग ऑलवेज फॉलो करते हैं कि प्रीवियस ईयर में अगर आपका टोटल टर्नओवर 400 लाख यानी 4 करोड़ क्रॉस ना करे, तो उसके कारण करंट ईयर में आपका स्टेटस हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अगर करंट ईयर में आपका स्टेटस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो करंट ईयर में आपको फर्स्ट 150 लाख पे एग्जम्पशन मिलता है। वापस बताता हूं फ्रेंड्स,
प्रीवियस ईयर में अगर आपका टोटल टर्नओवर या जो वैल्यू ऑफ क्लियरेंस हम बोलते हैं पर्टिकुलर वर्ड, इफ योर वैल्यू ऑफ क्लियरेंस डज नॉट एक्सीड 400 lakhs, then in current year your status is SSI, and in current year if your status is SSI, in current year you get a 150 lakhs exemption. इसके सामने फ्रेंड्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को एक अलग लिमिट दी है कंसिडरिंग द नेचर ऑफ देयर बिजनेस। क्या? तो क्या उनके केस में प्रीवियस ईयर आपको 400 lakhs कैलकुलेट ही नहीं करना है। उनके केस में प्रीवियस ईयर का लिमिट दिया हुआ है 12 करोड़, यानी अगर प्रीवियस ईयर में उनका टोटल टर्नओवर 12 करोड़ क्रॉस ना करे तो करंट ईयर में वो लोग एसएसआई कैटेगरी में आएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अगर करंट ईयर में वो एसएसआई कैटेगरी में आएंगे ना, तो करंट ईयर में उन्हें 6 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगा। यानी फ्रेंड्स उनके लिए स्पेशल लिमिट्स रखे गए हैं। कोई भी नॉर्मल मैन्युफैक्चरर अदर देन ज्वेलरी की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स 400 lakhs का लिमिट है और करंट ईयर में 150 lakhs का लिमिट है। बट अगर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो उनके लिए ये स्पेशल लिमिट है, ओनली फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स, नॉट फॉर एनी अदर पर्सन। For jewelry manufacturer, this limit has been kept as what? तो कि previous year 12 करोड़, current year 6 करोड़। तो अगर आप बात करो 2016 से ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज आया, 1 March 2016 was an effective date, तो कोई भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर जिसकी हम फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए चेक करना पड़ेगा कि उनका 14-15 का टर्नओवर क्या है। अगर 14-15 का वैल्यू ऑफ क्लियरेंस या टर्नओवर, जो भी वर्ड यूज करे, प्रॉपर वर्ड वैल्यू ऑफ क्लियरेंस है, 14-15 का टोटल वैल्यू ऑफ क्लियरेंस अगर 12 करोड़ क्रॉस कर लेता है तो 15-16 में उन्हें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगर 14-15 का टोटल वैल्यू ऑफ क्लियरेंस 12 करोड़ क्रॉस ना करे तो 15-16 में उन्हें एग्जम्पशन मिलेगा। अब सेम वे जो करंट ईयर है 16-17, तो मान लो कि 15-16 में उनका टर्नओवर अगर 12 करोड़ क्रॉस कर गया था तो 16-17 में उन्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगर 15-16 में उनका टर्नओवर 12 करोड़ क्रॉस नहीं किया था तो 16-17 में अगेन उन्होंने ये एग्जम्पशन मांगा होगा 6 करोड़ का। तो ये फ्रेंड्स एक चेंज आया ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के कारण। उनकी एसएसआई की लिमिट ही अलग है, हमारी एसएसआई की नॉर्मल लोगों की लिमिट अलग है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग लिमिट ही असाइन हुआ है, बराबर। अब फ्रेंड्स बिकॉज ये चेंज आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आने ही वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट चेंज अगर मैं आपको बताऊं तो पहला चेंज ये आएगा कि आपको याद हो तो एक्साइज में सैंडविच में कैपिटल गुड्स की क्रेडिट हमें मिलती है, जिसका रूल क्या होता है तो कि कैपिटल गुड्स की क्रेडिट के लिए नॉर्मल रूल ये है कि जिस साल में आप कैपिटल गुड्स रिसीव करो उस साल में आपको 50% क्रेडिट मिलता है और बाकी का 50% क्रेडिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है। 50% क्रेडिट इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, रिमेनिंग क्रेडिट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, दैट्स द नॉर्मल रूल। बट अगर तुम एसएसआई कैटेगरी में हो, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना है, एसएसआई कैटेगरी में हो तो आपको पूरा क्रेडिट एक साथ मिल जाता है, आपको क्रेडिट 50-50% डिवाइड नहीं करना है। नॉर्मल रूल क्या है तो कि 50% क्रेडिट इज अवेलेबल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, रिमेनिंग क्रेडिट इज अवेलेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर्स सब्जेक्ट टू एक्चुअल पोजीशन, व्हिच इज नॉर्मल रूल, बराबर। बट अगर तुम एसएसआई कैटेगरी में हो तो तुम लेते हो फुल क्रेडिट इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये एसएसआई को प्रमोशन दिया हुआ है। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो अब ज्वेलरी वालों के लिए बिकॉज एसएसआई का लिमिट अलग है तो उनके लिए 10 करोड़ का टर्नओवर होने तो भी फुल क्रेडिट मिलता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर फ्रेंड्स मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरर हूं ना और मेरा टर्नओवर 10 करोड़ होगा ना, तो आप सोचो अगर 10 करोड़ है तो क्या मैं एसएसआई हूं? नहीं। अगर मैं एसएसआई नहीं हूं तो मेरे को फुल क्रेडिट मिलेगा इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन? नहीं मिलेगा। बट अगर मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूं ना और अगर मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ है ना तो मैं 110% एसएसआई हूँ, तो अगर मैं एसएसआई हूँ तो मेरे को फुल क्रेडिट मिल भी जाएगा इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। रीजन एक ही है कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसएसआई का लिमिट अलग डिफाइन हुआ है, अलग से बनाया गया है, तो उनके लिए क्रेडिट का क्राइटेरिया भी अलग ही है। तो ज्वेलरी के लिए ये एसएसआई रहेगा तो उनको उस हिसाब से क्रेडिट भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही और भी चेंजेस है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जैसे कि एक और चेंज है कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड उन्हें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की जगह पे इन एक्साइज सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की जगह पे उन्हें सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ।
ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है। एक और बेनिफिट है उनके लिए, क्या? तो कि फिजिकल वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स, एक्साइज में जैसे आपको याद हो, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक्साइज डिपार्टमेंट फिजिकल वेरीफाई करने आता है प्रीमाइसेस को, जिसमें फाइनेंस एक्ट 15 में एक चेंज आया था। ओल्ड रूल ये था कि आप अप्लाई करोगे, विद इन 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन वो वेरिफिकेशन करने आएंगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे, बाकी रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करेंगे। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 15 से उसमें चेंज आया, क्या? तो क्या आप अप्लाई करो ऑनलाइन, विद इन 2 डेज आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, बट दैट रजिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन एट अ लेटर स्टेज। तो उसमें भी फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला था, बट पहले रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, बाद में वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओल्ड में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद ही ग्रांट होता था, न्यू में रजिस्ट्रेशन पहले ग्रांट हो जाता है विद इन 2 डेज, बट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एट अ लेटर स्टेज। तो ये प्रोविजन था, ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन। अबे इन केस ऑफ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर दे हैव केप्ट अ सेपरेट क्राइटेरिया, क्या? तो कि उनके केस में रजिस्ट्रेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके केस में फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक और अमेंडमेंट है। तो ज्वेलरी वालों के लिए हमने टोटल अलग अलग पॉइंट्स रेफर किए। नंबर 1, उनके लिए एसएसआई लिमिट अलग है। नंबर 2, उनको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट, बिकॉज एसएसआई लिमिट अलग है तो अलग रीजन से ज़्यादा पूरा क्रेडिट एक साल मिल जाएगा। नंबर 3, जब भी हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं हमारे पास सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। नंबर 4, अगर हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा।